अरे बाप रे। अच्छा अच्छा मुंह बना रहे हो तुम भी लोग, दिख रहे हो इसमें भी। ओके, थॉमसन मॉडल और प्लम पुडिंग रिकॉर्डिंग ऑन है। सब actually this is a part of atom and its structure. ठीक? Okay, structure of atom. Thomson says actually after the discovery of electron, proton and neutron, actually electron and proton at first very first electron discovered, then proton, then after that neutron, then Nucleus. when Dalton's theory disapproved, Okay. okay, because atom is divisible, electron is subatomic particle and another is proton is another subatomic particle. Now next other question arises, what is the arrangement of the subatomic particle in atom? ठीक है, यह क्वेश्चन आ गया. So the arrangement is at first very first proposed by Thomson. He says that there is a positive sphere, there is a positive sphere Negative in which this all sphere is positive. positive in nature. And negative वाले क्या कहना जाएगा? And negative particles are there in such manner that they neutralize The atom. whole atom. In such a manner, the negative particle which is embedded in this positive sphere is distributed in such a manner that they can neutralize whole particle. The distribution may be something like this. It may be something like this. All the negative particles are here. जैसे one में black light और All the negative particles are here. But by this arrangement, in this arrangement, it cannot be neutralized. Alpha These light. regions are positively charged, these regions are negatively charged, or neutral region. So whole atom is charged. But in nature, whole atom is neutral. There is no charges. Okay. So it basically gives you the distribution of embedded negative particles. This is all about the Thomson models. rather Only two statement is there. The positive sphere, all negative particles embedded in under it. that. Okay. Second statement is that the negative particle is distributed in such a manner that they can neutralize whole atom. Over. Thomson खत्म. ठीक है? Now the record. After observation of Thomson model, Rutherford thought to experiment to check the validity of this model, whether it is right or wrong. He set up an experiment. Okay. In Rutherford experimental setup, there are different type of pictures represented Source of given on your books. source of alpha rays Come here. Just explain. Yes, बताओ. सर उसमें एक सोर्स था अल्फा रेस से निकलने का, जिसके बगल में सर ऐसे था और यहाँ पे अल्फा रेस निकल रही थी. और सर यहाँ पे गोल्ड फॉल्ट एकदम बहुत ही कम डायमीटर मतलब थिकनेस का गोल्ड फॉल्ट लगा थे, और इधर एक ऐसा सब्सटेंस ल्यूमिनस सब्सटेंस लगा थे जो कि थोड़ा भी अगर 4 पॉइंट में लूम पे आते तो तुरंत ग्लो करता. तो सर जब वहाँ से ये अल्फा रेस आ रही थी तो सर वो ये देखे पॉजिटिव रेस आ रही थी सर, सॉरी हाँ पॉजिटिव रेस आ रही थी, तो कुछ तो सीधी चली जा रही थी. Alpha ray is positive. नहीं सर कुछ पॉजिटिव रे यहाँ से निकाले थे वो. Positive rays. हाँ तो सर कुछ तो सीधी चली गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ सर अपने उसी पाथ पे वापस आ गई. तो ये बताया
कि नहीं, जो पॉजिटिव है वो सेंटर में है और उसके अराउंड नेगेटिव रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन सर वो ये नहीं बता पाया कि वो किस मैनर में रिवॉल्व कर रहा है, किस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। और सर वो उनका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। जैसे सर एक था एक्सपेरिमेंट था जिसमें सर कोई भी अगर रिवॉल्व करते रहेगा तो क्लोज आ जाएगा और चिपक जाएगा। सर नेम नहीं याद आ रहा उनका। और सर एक लाइट स्पेक्ट्रम था, वो भी उनके एक्सपेरिमेंट को गलत प्रूव कर दिया। समथिंग मोर? ओके, तो जो व्हाट्स द गुड नेम? रौनक। ओके, चलो थैंक यू। रौनक ने जो कहा as says रौनक and just elaborating, okay, and elaborating the statement, okay. Here is Rutherford taken a gold tin foil. Why? Because metal is malleable. Malleability can be beaten into thin sheets. That is why we take a metal. Clear? Very thin sheets. Okay. And we bombard with alpha particles. Bombard with alpha particles. It is heavier than gold metals. Atom, not metals. A single atom. Okay. Is it right or wrong? Alpha particle is heavier than a gold atom, which will be heavier, this one or this one? Wrong. Gold, but always gold. Will mass depend on protons? Alpha particle have actually 2 and 4. 4 unit mass is there. Alpha particle have 4 unit mass. Okay, only. And what is the mass of gold particle? Gold atoms. I also don't know, but they have much protons available. Okay, so that one is heavy, but actually we using here alpha rays just to show interaction between single protons and single electrons, not the whole nucleus, whole atoms. We actually Rutherford wants to know the interaction between a single electrons and single protons by the alpha particle. And now it is 4 times heavier, और इससे तो बहुत ही ज्यादा, प्रोटॉन से 4 टाइम्स हेवियर है, इससे तो बहुत ज्यादा है ना? So that is why we consider it here a heavy particles called alpha particles bombard on gold foil. This is gold foil. Some of the pictorial presentation is like this, है ना? ऐसा भी करते हैं कई पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन में, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। सबका बेसिक कंसेप्ट एक है, सब में क्या कराया जा रहा है? हियर इज द अल्फा पार्टिकल गन, हियर इज द पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक, स्टार्ट। Start to strike the what the result observed by the Rutherford is quite unexpected. So what is the expected? What expected here? Because Thomson said here is the positive sphere, the negative particles are embedded. Okay, so सबको वापस आ जाना चाहिए। yes, almost is very positive, and alpha particle also positively charged. So all the alpha particles have to be reflect.
they have repulsion na, positive and positive, but they all passes without any deviation in their path. फर्स्ट पहला मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, 4 टाइम्स हैवी है ना। तो एक्सपेक्टेड थिंग इज दैट द path of alpha ray should deviate from their original path. जो उसका ओरिजिनल पाथ है उससे क्या हो जाना चाहिए, इसको डेविएट हो जाना चाहिए, इधर उधर हो जाना चाहिए, जस्ट ड्यू टू द पॉजिटिव और पॉजिटिव यस रिपल्सन, सेम चार्ज रिपेल है ना। तो थोड़ा उसको डेविएट करना चाहिए अपने ओरिजिनल पाथ पे, तो उसको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बट वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट observed here, all the particles not deviated from its original path. First, not deviated, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, yes, a few particles get reflected by reflected with small angles, चलो ठीक है भाई। तो कुछ ही स्मॉल एंगल पे डेविएट होगा, तो सोचता था कि बहुत सारा डेविएट हो जाना चाहिए, कुछ ही डेविएट हुआ। इसी के हिसाब से ऑब्जर्वेशन अभी इन्फरेंस निकलेगा इसमें, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज some of them reflected in small angles. अब यहाँ पे a very few particles approximate 1/10,000 10,000 में एक particles bounce back. There is 3 very very important observation he noted. The first statement of Thomson failed here because not all alpha rays are not deviated. According to Thomson, they should deviate. Second, some of them reflected with small angles. उसमें से कुछ ही जगह पे कुछ रिफ्लेक्शन आया स्मॉल एंगल से, मींस प्रोटॉन्स कुछ ही जगह पे हैं, हर तरफ नहीं है। ये भी थॉमसन को फेल ही कर रहा है। और एक नई चीज पता चल रही है कि प्रोटॉन कम जगह पे हैं। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन, अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक। अल्फा पार्टिकल को बाउंस बैक कौन कर सकता है? A single proton they not have a much magnitude to reflect alpha particle. एक साड़ी लटका कर मैं यहाँ पे फुटबॉल ऐसे फेंकूंगा तो साड़ी फेंक देगा क्या इधर, लेकिन ये दीवार पर फुटबॉल फेंकूंगा तो व्हाट विल हैपन? फुटबॉल बैक रिफ्लेक्ट। क्यों? स्टोन हैवी मास और कोई कर्टन वगैरह है तो उसको उतना मास नहीं है। क्यों? फुटबॉल का ज्यादा मास है, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। बात को समझ रहे हैं ना? सो इससे ये पता चला कि इट्स मे बी ऑल द प्रोटॉन्स आर लाइज ऑन सेंटर। बहुत सारे प्रोटॉन एक जगह पे होंगे, है ना। एक तो ज्यादा जगह से डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, रेंज ऐसी प्रोटॉन का नहीं हो गया।
और अल्फा पार्टिकल को अपने से 4 गुना चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दे में है कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटॉन रीजन एंड दिस रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीच में मत बोलो, मैं रुकता हूं तब बोलो, ठीक है। द टर्म न्यूक्लियस गिवन बाय द रदरफोर्ड। तो आपको दो चीजें पढ़ना है, क्या ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या थ्योरी दिया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड सेड, क्या करते हो तुम लोग, खेल रहे हो, गुड, तुम खेल रहे थे, मैं देख लिया, मैं हाथ खोलो, उठा ले जाना, ठीक है, उसी में आगे बढ़ती चलाना। क्या बोला था मैं, टू प्रिंसिपल गिवन बाय द बोर्ड। फर्स्ट रीड फर्स्ट, nucleus of the atom is positively charged. What about Thomson? Just antagonist, opposite. There is small the nucleus. किसके बेसिस पे किसने कहा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस? इसके बेसिस पे, ठीक है, बाउंस बैक है ना, और इसके बेसिस पे, अभी बाउंस बैक को छोड़ो थोड़ा, इसके बेसिस पे some of them reflected with small angles, बीच में है, रिफ्लेक्शन कौन करेगा, बट ऑब्वियस पॉजिटिव चार्ज ही कर पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब था कि इससे ये पता चलता है कि ये सर पूरा मास न्यूक्लियस भी होता है ऑलमोस्ट। ये बीच में बोलो यार, वो कंप्लीट करने दिया करो ना, क्यों बीच में इंटरप्शन करते हो, थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। डायलॉग शुड बी देयर बट इन प्रॉपर टाइम। डायलॉग तो होना ही चाहिए, क्लास मोनोटोनस होगा वो मजा नहीं आता। आप बोलिए जितना ज्यादा आप सबको भी बोलना चाहिए, वो एक ही बोलता है, लेकिन उसको टाइम पे बोलना चाहिए, ठीक है। अभी मैं शुरू ही करूंगा, बीच में इंटरप्शन आ गया, मुझे कंप्लीट करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन था, पहला प्रिंसिपल ये था, न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। सेकंड प्रिंसिपल, आई मीन सेकंड थ्योरी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट, nucleus of atom is very dense and किसके बेसिस पे बोला, इसके बेसिस पे बोला, बहुत डेंस है तब तो कैसे 4 गुना चीज को रिफ्लेक्ट किया। बात समझ में आ रही है ना। अब बोलो क्या बात है सर, ऑलमोस्ट मास जो होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है पूरे सर, और एटम उसी सेंटेंस को आप जो बोल रहे हैं उस सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस लाइज ऑन सेंटर। बात तो वही निकली है ना, लिख दो तीसरा, ऑलमोस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस लाइज ऑन सेंटर। सर अगर ऑलमोस्ट मास सेंटर पे तो बाकी जितने एरिया में इलेक्ट्रॉन रिवर्स कर रहे हैं इतना ही तो स्पेस जैसा हो गया सर। यस ऑफ कोर्स, तो वहां से पार्टिकल पास जैसे हाथ से अगर इसमें तो स्पेस भी है ना, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है लेकिन बाकी जो एरिया एटम में स्पेस है सर, कुछ चीज पास निकल जाती है। कुछ पास क्यों नहीं हो जाती? किससे पास, जैसे 2 एटम है सर, तो 2 एटम क्यों नहीं पार कर जाते? 2 एटम पास करते हैं एक दूसरे को। हाँ, स्पेस है ना बीच में, तो हो जाना चाहिए। आपको अभी अभी पता चला कि these are the reasons for revolution of electrons and here is maybe nucleus at the center and जब ये दोनों चीजें मिल रही हैं एक फॉर्म मैटर है, एक फॉर्म मैटर है एंड हैव एग्जिस्टेंस। एक इलेक्ट्रॉन से मैटर नहीं बना, एक प्रोटॉन से मैटर नहीं बना, दोनों के मिलने से बना। तो suppose this is the boundary of the matter, this is the, if we consider a single atom, so this is the boundary of the matter. Let us assume another particle,
These are the electrons and these are also neutrons. They will repel each other. These are protons and they will also repel each other. And none of the atoms merge in other atoms, but they have bondings to stay to exist together. They have some bondings. लेकिन merge नहीं हो जाएगा. एक एटम में दूसरा एटम they have the limiting bond. It's fair. The reason for the revolution of electrons. These are the limiting bonds. None of the atom can cross it. Even in solid. Even in solid, a minute space is there. What is the space and Yes, of course. हर चीज में स्पेस होता है. सट ही नहीं सकता. It's not possible to merge. I told you ना. Here is the region of revolution of electron. Here is the also region of revolution of electron. Not possible. Not possible of merging. If they merge, they form another हम तो चाहते हैं ऐसा हो, मजा आएगा. ठीक, लोहा उठीना मिला के सोना बनाने को नहीं सकता. चाहते हो ना भाई, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है. 12 कब तक पड़े होंगे कहानी बनी. छुट्टी हो गया. हो गया छुट्टी. चलिए नाउ नेक्स्ट टाइम बोर्ड एक्सप्लेन करेंगे. ये जो एक साथ जो कंबाइन होकर बनाता है ना, तो इससे भी बॉन्डिंग होती है. सिर्फ आपको पता है ना, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, तो सिर्फ बाहर की मर्ज में ना, अंदर के तो मर्ज नहीं है ना, तो बाहर के मर्ज में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं. आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. चलो, ये सब प्यारे बच्चे, ये लोग क्लास देख रहे थे. एंड दिस इज आवर क्लासरूम and myself Vijay.